Good morning, everyone. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. It is gorgeous Saturday morning, and look at this tree in my backyard. Especially from last couple of weeks, this tree has bloomed so much that now it has covered this entire window. Especially from inside, it just looks so nice. It's like that picture perfect. So, Saturday morning is starting with some methi dana water. So, what I do is at night I soak the methi dana in the water, and in the morning I warm this water in the microwave and I just drink this water. Now, if you don't want to have the methi dana, if you feel like it's too bitter and if you don't want to eat that, you can just strain this water, but I don't mind at all. So, I drink this with the methi dana. It has many health benefits. So it basically flush out all the toxins from the body. Also, it regulates the blood sugar. It take care of the cholesterol. It's good for your skin, hair. So I started drinking this every day. Actually, I change my water. Sometimes I have the cumin water. Sometimes I just have a regular water with some lemon and the honey in it. So I usually like to wake up, especially in the weekend, at least an hour before everyone wakes up. So then I have like a me time. Because once everyone wakes up, of course, then everyone's breakfast and all that things start. So once I had that, I went downstairs, did some exercise, and today we are going to the outlet mall. So before leaving, I want to make heavy brunch. So here I'm making this burger sandwich, and for that I'm using this Morningstar veggie patty, and you do want to cook that according to package. You can find this at any grocery store. So I have four of them there, and in this pan I took some oil. Into that add some sliced onion as well as the different colored bell pepper. Now both of this we don't want to cook all the way. So within a 5 minutes it should be ready because we still want some crunch. Into that now I'm gonna add some salt to taste, some oregano, as well as the red crushed pepper. Now if you don't have the oregano, then you can just use the Italian seasoning and that's fine. So here I'm using this club roll. Now you can use the hoagie roll or the Subway roll, but not the hot dog rolls because the hot dog rolls are not as thick as this one. And we're gonna stuff this with the burger as well as the onions. So hot dog rolls will not hold that properly. And now I'm gonna go ahead and split this open. Now when you split this open, you don't want to cut it like all the way. And next I'm gonna apply some butter and put it in the oven on 250 degree for about 5 minutes or so. Now this step is totally optional, but I just want my bread to get crispy. So for that reason, I'm gonna keep it in the oven just for 5 minutes or so. And on this other side, now we're gonna make this sauce for this. And for that, I'm using this Rao's roasted garlic pasta sauce. Now you can use any marinara sauce, pasta sauce, any brand that you like. But I would highly recommend this Rao's one because it is so good. And this is the same pan which I made onion. So as you see, I'm not adding any oil in it. I just want basically this pasta sauce to get warm up. So I'm gonna keep it there for about a minute or so, and also in it I'm adding some red crushed pepper. That is totally optional. And next what I'm gonna do is I'm gonna take some pasta sauce in this separate bowl because we do want to spread this pasta sauce on a bread. And now I'm gonna go ahead and add the burger into this sauce. Keep it on a low to medium flame for about 5 minutes or so.
So here, as you can see, bread is crispy, and now I'm gonna go ahead and spread the sauce on both sides. So this sandwich is so unique because it has everything what kids like. So it got bread, pasta sauce, burger, cheese, and who doesn't like that, right? So definitely, guys, give this recipe a try. And this sandwich is so filling, and for that reason, actually, I made it today because especially now, whenever we go to mall, if it's too crowded that I don't feel comfortable sitting over there eating. So I wasn't sure how this mall cafeteria would be. So that's the reason I thought, let me just go ahead and make this sandwich. So at least kids won't feel hungry for a few hours. And here I'm using this pepper jack as well as the provolone cheese. Now you can use any cheese that you like. So basically, as you saw here, that I put some burger as well as the onion and top it with some cheese. I'm gonna put this in the oven on 350 degree just for about, I would say, 5 minutes or so until cheese is not melted. So add some red crushed pepper on top, and that's about it, guys. Enjoy your sandwich. Definitely give this recipe a try. I'm sure everyone will love it. सो बस जैसे ये सब कुछ हमारा ख़त्म हुआ, हम निकल गए मॉल के लिए। तो मॉल जाने के लिए ऑफ कोर्स हम हाईवे से तो जा ही सकते हैं, पर ये जो अंदर का रास्ता है ना, वो मुझे इतना पसंद है क्योंकि जैसे आप देख रहे हो, ना ही इतना कोई ट्रैफिक है यहाँ पे, ना ही इतनी कोई भीड़-भाड़ है। दोनों साइड बस ग्रीनरी है। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ ना, पता नहीं मन को एक अजीब-सी शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। तो बस अच्छा सा म्यूजिक लगा दो और रास्ता एंजॉय करते हुए जाओ। बस ऐसा होता है कि ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। और आज तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे तो और अच्छा लगा। अभी हम लोग आए हैं आउटलेट मॉल में क्योंकि बच्चों के शूज़ लेने थे और शूज़ तो ले लिए, बस ऐसे ही ब्राउज़ कर रहे थे क्योंकि इतनी कोई ख़ास आज यहाँ पे भीड़ नहीं है। यूजुअली वीकेंड में ऑब्वियसली ज़्यादा रहती है, पर अभी हम लोग हैं फूड कोर्ट में। मैं आपको बताती हूँ, फूड कोर्ट भी अभी इतना खाली है ना यहाँ का। तो ये देखो गाइस, ये पूरा फूड कोर्ट। पहले तो हम आते थे ना तो यहाँ पे स्पेशली लंच टाइम में तो इतनी भीड़ रहती थी, पर यहाँ पे आज जैसे आप देख रहे हो इतना कुछ खास नहीं है। स्पेशली ये जो ग्रीन लीव्स है ना, उनका एक उनके पास फ्रेश जूस होता है जो मुझे बहुत पसंद है। तो वो सी कि क्या बाय करते हैं आज। बाहर का आप कितना भी खाना खा के आओ ना, घर आके बस थोड़ी सी भी चाय मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो बस घर आके पहले ही हमने चाय पी और जैसे मैंने बताया हम लोग गए थे आउटलेट मॉल। तो मॉल का आज इसलिए हमारा प्लान बना क्योंकि मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चों को चाहिए था शूज़, और वो भी ट्रेडमिल पे चलने के लिए, क्योंकि आई मीन ऑब्वियसली दे हैव मोर देन वन पेयर। पर क्या होता था कि जब उनको वॉक करना होता था ना, तो जो बार वाले शूज़ है वो पहले नीचे से प्रॉपर्ली क्लीन कर देते, उसके बाद फिर वो घर में अंदर लाते थे, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है कि बार वाले शूज़ आप घर में अंदर पहन के आओ। तो हमेशा वो लोग पहले नीचे से क्लीन करते थे, उसके बाद ही वो ट्रेडमिल पे वॉक करते थे। सो आई वाज लाइक, व्हाई डोंट यू जस्ट गेट द न्यू पेयर, कि वो आप ट्रेडमिल के लिए ही रखो, जब आपको वॉक करना है वो ही शूज़ पहनो, उसके बाद निकाल के वहीं पे रख दो और वो शूज़ बार यूज़ मत करो। तो क्योंकि मैंने भी वो ही किया है। तो जब ट्रेडमिल आया ना, आई थिंक उसी दिन और दूसरे दिन मैं गई थी आउटलेट मॉल में और मेरे लिए मैं शूज़ ले आई थी। तो ऑब्वियसली उस टाइम वो तीनों मेरे साथ नहीं थे, तो आई वाज लाइक कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग इट, व्हाई डोंट यू गाइस डू द सेम थिंग। तो बस उस हिसाब से ही
शूज़ लेने के लिए हम लोग गए थे। तो आजकल हम क्या करते हैं कि ऐसी कोई जगह पे जाते हैं ना, तो मैक्सिमम हम लोग वहाँ पे 1 और 2 घंटा रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, ताकि इतना एक्सपोज़ ना हो ना। तो बस फटाफट से शूज़ लिया और जैसे मैंने बताया बच्चों को खाना था तो उन लोगों ने सैंडविच वग़ैरह खाया। हमने जूस ले लिया था वहाँ से, क्योंकि घर से इतना खाना खा के गए थे ना, तो ऑब्वियसली वहाँ जाके कि इतनी कोई भूख नहीं थी। और आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ का ये फूड कोर्ट है इतना खाली होगा। आई वाज़ लाइक कि वीकेंड है तो आई एम श्योर कि काफ़ी लोग वहाँ पे होंगे, पर इतने सारे कोई लोग थे नहीं वहाँ पे। तो और कोई स्टोर में मैं नहीं जा सकी। टोरी पर्च में मुझे जाना था, केक स्पेड में जाना था, पर कोई स्टोर में मैं गई नहीं। बस फटाफट ये 2-3 स्टोर में गए और निकल गए हम लोग। तो शूज़ तो आ गए, तीनों के शूज़ लेने थे, तीनों के शूज़ आ गए। और वैक्सीन का जो फर्स्ट डोज़ है ना, वो तो हमारा हो गया है। मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का हमने फर्स्ट डोज़ ले ली है। तो उसकी कोई हमें साइड इफ़ेक्ट और कोई ऐसे सिम्पटम्स कुछ हमें नहीं हुआ था। मैंने जब लिया तो 1 आध 2 घंटे के लिए आई वुड से कि मेरा हाथ थोड़ा मुझे भारी लगा था, पर अदर दैन दैट और कोई सिम्पटम्स मुझे नहीं थे। एक्चुअली उसने मुझे कब दे दिया ना, वो भी मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि बहुत ही स्मूथ पहला डोज़ का तो मेरा हुआ है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा पेन था, तो उनको पेन किलर की ज़रूरत पड़ी थी, पर अदर दैन दैट और कोई सिम्पटम्स हमें नहीं थे। अभी जो दूसरा डोज़ है वो हमारा नेक्स्ट वीक है, तो फिंगर क्रॉस फॉर दैट वन कि देखते हैं क्या होता है, क्योंकि उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है ना उसका काफ़ी सारा मैंने सुना हुआ है। तो विल सी क्या होता है। पर अदर देन दैट राज का अभी बाकी है, तो 16 से अप है ना, तो आर्यन का भी नहीं हो सकता क्योंकि ही इज़ अंडर 16 अभी। पर राज का हो जाएगा, पर हम लोग वेट कर रहे हैं कि एक बार हमारा प्रॉपर्ली हो जाए ना, उसके बाद हम उसका करवाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई जाना उसका होता नहीं है ना, घर पे ही होता है। तो बस लाइक कि पहले हम करवा लेते हैं, उसके बाद उसका देखेंगे। पर डेफिनेटली बोथ ऑफ माई बॉयज़ विल गेट द वैक्सीन, क्योंकि वैसे भी जब स्कूल शुरू होगी ना, तो स्कूल ऑल्सो रिक्वायर वैक्सीन, तो तब तक के लिए तो उनका होना ही चाहिए। पर दैट्स इट। अभी मैं हूँ मेरे गेस्ट बेडरूम में, और ये जो क्लोसेट है ना वो भी मैंने पूरा कैप्चर किया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी पड़ी है, पर क्या होता है कि जब मेरे क्लोसेट में जगह नहीं होती ना, मैं सब कुछ यहाँ पे आके डंप कर जाती हूँ। तो बस आज शाम को कुछ इतना कुछ खास बनाना नहीं है मुझे, तो सोचा कि ये सब कुछ मैं टैकल कर लेती हूँ। तो बस आज का सैटरडे हमारा ऐसा ही रहा, शॉपिंग थोड़ी की और अब सारी जो चीज़ है उसको ठीक ठाक करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो रेसिपी मैंने सुबह में सैंडविच की आपके साथ शेयर की ना, वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनती है और एक ही सैंडविच में बस पेट भर जाता है। तो कुछ नया है क्योंकि बर्गर की भी है उसमें और ये पास्ता सॉस भी है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। So that's it guys, thank you so much for watching, take care and I will see you soon in my next video.